ट्विटर की टक्कर में आई मेटा की माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप थ्रेड्स के सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग थ्रेड्स को डाउनलोड कर चुके हैं। इधर ट्विटर मेटा पर यह आरोप लगा रहा है कि उसने ट्विटर के पुराने कर्मचारियों को नौकरी पर रखा और ट्विटर की कॉपी की है। ट्विटर ने मेटा पर केस करने की भी धमकी दी। कल मेटा ने थ्रेड्स लॉन्च किया था। इसे एक साथ 100 से ज्यादा देशों में लॉन्च किया गया। थ्रेड्स में एक साथ 500 अक्षर लिखने का विकल्प है। ये सीधे मेटा के ऐप इंस्टाग्राम से जुड़ा है और इंस्टाग्राम के मौजूदा यूजर्स इसमें उसी यूजर नेम से लॉग इन कर सकते हैं। So guys, this is the new hot word. This is what everyone's talking about because the moment when Meta announced this new app, Threads, सब चारों तरफ बातें करने लगे and everyone thought कि ये वो चीज है, you know, which will compete with Twitter now. And now Zuckerberg has announced kind of, you know, his own version of Twitter as Threads. But let me tell you, this is not the first time that this app has, you know, came into existence. It was back in 2019 और उस time पे there was an app by the same company. The name was Threads. The idea was that it used to be a camera-first messaging app with status updates. But eventually, when kind of, you know, Instagram had more or less the similar features, in 2021 the app was taken down. Now the idea for Threads, as what, you know, Zuckerberg told, is to create an open and friendly environment for conversations, you know, in comparison to Twitter. So basically, if I tell you, this app works very closely with Instagram because if you are verified on Instagram, let's say if you are paying a monthly fee or if you are verified, you know, already, आप जब यहाँ से Threads पे जाएंगे, so you can carry over the same username, you can have the same verification check mark, and then kind of it integrates quite closely with Instagram. And the idea is to have these conversations. You can have mentions, you can do posts, reposts. I mean, think of it as a similar version of Twitter but just done in a Facebook styling. The UI, the UX, although the app is in beta, you know, in my experience is very seamless. काफी अच्छे से सब कुछ चीजें काम करती हैं. Although there are still some limitations. For example, right now there's no option for any hashtag. There's no option for kind of, you know, your feed to be in chronological order, या उसके अलावा there is no option for DM as well. तो ये सब चीजें शायद अभी आने वाली हैं in the coming days, but it just shows the power of Meta as a platform because let's say WhatsApp, Instagram, Facebook, because all of these are owned by Meta now, and Threads being the newest member of the family, and the way, you know, this works very closely with Instagram kind of, you know, shows the strength what Meta has with it. But then again there has been some response कि लोग गए starting में and then उनको मजा नहीं आया because they didn't feel that Twitter vibe there. So for all that, you know, crowd who loves Twitter, maybe Thread is something which they would not prefer eventually. But अभी के लिए, because this is new, this is fresh, everyone's kind of, you know, talking about it. Everyone's going to Threads, creating their own accounts. And in fact, I'll tell you my own experience. Just this morning, I created my account on Threads and the login is done via Instagram, which is completely seamless. I had the same username. I had the same blue verification mark. And within hours, now I've got more than 40,000 followers. So I think this clearly shows the traction that yes, people are coming in. People definitely want to, you know, use Threads, and it has a different kind of an environment. And the best part, what I feel is, it goes you know, away from the metrics. यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आपको like दिख रहे हैं कि, you know, how many likes someone's got or no what's the number, because it hides them. And the main idea is just about conversation. The idea is कि आप बात करें, आप react करें, आप चीजें share करें in this environment. And that's why the name comes in, you know, Threads. Because धागे की तरह, the idea is to kind of, you know, link everything, you know, your own network, and like as a thread would, you know, link multiple things. So यहाँ पे now we have one more option for everyone who is kind of on this digital world, who just wants to do everything possible. So starting from Facebook to Twitter, now अभी Threads का भी option आ गया है for people to enjoy. And let's see what happens in future. आगे चल के क्या नए updates मिलते हैं, response कैसा होता है, how do people, you know, perceive it, and if it becomes a big hit or another flop in this digital age.
That's it about Threads. At least go ahead and try. I mean, you'll like it a certain way maybe, and even if you don't, there's no harm in it because ज़्यादा मुश्किल नहीं है. That account creation will take only couple of minutes. उधर ट्विटर ने मेटा पर कॉपी कैट ऐप बनाने के लिए पूर्व ट्विटर कर्मचारियों को हायर कर ट्विटर के ट्रेंड सीक्रेट का गैर कानूनी इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर के वकील एलेक्स स्पीरो द्वारा फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को भेजी गई एक चिट्ठी का हवाला देते हुए ये बताया कि ट्विटर ने अपने नए टेक्स्ट बेस्ड ऐप थ्रेड्स पर मेटा प्लेटफॉर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है. एनसीपी के अजित पवार के सरकार में शामिल होने के बाद शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में बेचैनी बढ़ गई है. नाराजगी के सुर उठने लगे हैं. ऐसे में शिवसेना के विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए कल रात को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच लंबी चर्चा हुई. ये बैठक मालाबार हिल के नंदनवन सरकारी बंगले पर हुई. इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह दावा किया है कि शिवसेना शिंदे गुट में कोई मतभेद नहीं है. उनके पद छोड़ने की बात बस अफवाह है. इधर उद्धव गुट ने दोहराया कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी जल्द ही खो देंगे. क्या महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार गुट के शामिल होने से शिवसेना के शिंदे गुट में बेचैनी और नाराजगी है? बुधवार से यही सवाल उठते रहे और देर रात विधायक सांसदों की बैठक हुई, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ किया कि इस्तीफे और मतभेद की खबर अफवाह है. ये अफवाह है. अरे कितने हद तक जाना. मैं तो कहूंगा कि उनकी जो पार्टी की हालत है वो हालत को देखना चाहिए. उन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए. दूसरे के घर में झांकने से पहले अपना घर साबित है क्या वो देखो. वो तो घर टूट गया है आपके ऐसे रवैये से. जिस अजीत पवार और एनसीपी के खिलाफ जाकर शिंदे गुट अलग होकर बीजेपी से मिला, आज वही शिंदे उन्हीं अजीत पवार को डबल इंजन सरकार का अहम सहयोगी मान रहे हैं. पिछले साल में इतने बड़े पैमाने पर विकास हुआ है इस राज्य में कि वो अजीत दादा ने खुद ही स्वीकृत किया है कि ये विकास भी हुआ है और विकास को हम साथ दे रहे. और राज्य में डबल इंजन की सरकार जो हम कहते अजीत दादा के भी वही विचार है, तो इसीलिए वो साथ में आए. इधर शिवसेना उद्धव गुट ने दोहराया कि शिंदे गुट के विधायक जल्द अयोग्य घोषित होंगे और मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी. रिजाइन करेंगे या रिजाइन करवाया जाएगा, वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. साथ ही साथ जब डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा तो कैसे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि 16 आमदार जिनके डिस्क्वालिफिकेशन होने हैं वो अभी स्पीकर के पास है और स्पीकर ने क्योंकि निर्णय नहीं लिया है सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दूसरी बात कि ये लोग नाखुश नहीं हैं, सब लोग बहुत खुशी का माहौल है. वो तो रोज़ अखबारों में दिख ही रहा है कितनी खुशी का माहौल है. थोड़ा वो संजय शिरसाट को सुन लें, थोड़ा वो भरत गोगावले को सुन लें, उनको उसका जवाब मिल जाएगा. चुनावों से पहले अजित पवार के सरकार में शामिल होने से महाराष्ट्र की राजनीति बड़े रोमांचक मोड़ पर है. लगभग हर पार्टी में हलचल है. बीजेपी के विधायकों में मंत्री पद को लेकर असमंजस है तो दूसरे दलों में भी अटकलें चल रही हैं. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट. शरद पवार से बगावत करने वाले अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने कहा, शरद पवार ने कई बार बीजेपी से हाथ मिलाने का फैसला किया लेकिन बाद में आखिरी समय में हाथ खींच लिए. साथ ही कहा, जहां भी शरद पवार रैली करने जाएंगे वहां अजित पवार भी रैली करेंगे. पिछले एक हफ्ते में महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीति एक बार फिर से बदली है, उससे 2022 की यादें एक बार फिर से ताज़ा हो गई हैं. शिवसेना में जिस तरह से दो गुट हुए थे उसके बाद ही शायद किसी ने सोचा होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में वापस ऐसा कोई बदलाव होगा. लेकिन 2023 में हमने देखा किस तरह से अब एनसीपी के भी दो गुट हो गए हैं. और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल मौजूद हैं. सर, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए. शुरुआत में सबसे रीसेंट डेवलपमेंट के साथ करूंगा. संडे से बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं. आज दिल्ली में शरद पवार जी की जो बैठक हुई उसमें यह फैसला लिया गया कि जो 9 विधायकों ने शपथ लिया उसके साथ सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और जो कोहली साहब हैं उन सभी को पार्टी से एक्सपेल किया जाएगा.
आप इसे किस तरह से देखते हैं? एनसीपी प्रमुख जिन्होंने इस पार्टी को बनाया वो आज वहां पर फैसला ले रहे हैं आप लोग को पार्टी से एक्सपेल करने का। देखिए, जब पार्टी बनी ना तो मैं पहला आदमी था जो इस पार्टी बनाने में उनके साथ गया। मैं कांग्रेस में था और कांग्रेस के होते हुए मैं विधान परिषद में काउंसिल में लीडर ऑफ अपोजिशन का काम कर रहा था और शिवसेना बीजेपी की सरकार के ऊपर जो है हमला कर रहा था। और जब उनको बाहर निकाला गया कांग्रेस से और नई पार्टी बनाने, तब जहां मेरा जो सरकारी विरोधी पक्ष नेता के हैसियत से बंगला 18 जो मंत्रालय के सामने, वही इस पार्टी की स्थापना हुई। सारे जो 1000 एफिडेविट बनाने वो वहीं हुए, कहीं जगह नहीं थी ऑफिस की। रात दिन हम लोग काम करते रहे। निशानी क्या हो, बार बार उसके ऊपर वही काम मेरे बेडरूम में करते थे बैठकर बच्चे लोग, ये लोग सब लोग। क्या नाम होगा, क्या है झंडा होगा। और फिर जब रैलीज और अधिवेशन होने का समय आया तो हमारे बच्चों ने, समीर पंकज ने और उनके जो साथियों ने षणमुखानंद हॉल सुबह वहाँ सारा अधिवेशन और शिवाजी पार्क के ऊपर जो है लाखों की जो सभा, उसका आयोजन 4-4 दिन तक सोए ने किया था। और वही फिर से हमको दोहराना पड़ा है। बात यह है कि पार्टी से जो है ओरिजिनल वो थे, तो मैं भी महाराष्ट्र के पार्टी का अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष रहा हूँ। बात यह है कि अब जो है सामने आपके कानूनी ढंग से जो है, अजित पवार ने भी कहा कि भाई ये जो मीटिंग हो रही है वो गैर कानूनी है, क्योंकि वो अध्यक्ष नहीं रहे। अध्यक्ष जो पार्टी के अजित दादा पवार हुए हैं। मेरा सवाल सर इससे ही जुड़ा हुआ है। शपथ विधि के अगले दिन आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम वहीं पर सह्याद्री में मौजूद थे। तब जब पूछा गया कि पार्टी का अध्यक्ष कौन, तब अजित दादा ने ही कहा शरद पवार। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि 30 तारीख को ही शरद पवार जी को पार्टी के अध्यक्ष पद से निकालने का फैसला जो है लिया गया, चुनाव आयोग को भेजा गया। लेकिन इसके बावजूद कल भी जो बैठक हुई उसमें सबसे बड़ी तस्वीर उनकी ही थी। तो इसे किस तरह से समझा जाए? 2 सवाल पूछ रहे एक साथ। उस समय जो है शायद अजित पवार चाहते थे कि सारे पत्ते जो है हम खोल ना दे। क्यों खोले? समय आने पर जो मालूम पड़ेगा सबको कि क्या हुआ है। और कल भी जो है मैंने खुद कहा था कि भाई ठीक है, जो हुआ से हुआ, मगर आज भी हम पवार साहब की इज्जत करना चाहते हैं, उनको सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए उनकी तस्वीर लगाओ। हमने लगाया। और कल मेरे भाषण में भी हमने कहा कि वो हमारे गुरु है, नेता है, मगर जो उनके इर्द गिर्द जो लोग जमा हुए हैं, जिनकी वजह से जो है कई सारे पहले भी घटनाएं घटी है, ये जो नहीं होनी थी। बीजेपी के साथ बार बार चर्चा करना जाने का तय होना और फिर पीछे हटना, क्या ये सब जो हुआ एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। 2014 से यही जारी है हमारे साथ। फिर भी मैंने कहा कि ठीक है, जो है हम सब भूल कर आगे चलते हैं। अब करें, साहब का हम सम्मान रखें, अब क्या करें। साहब बोल रहे मेरा फोटो न तस्वीर मत लगाओ। और जिनको कुछ मालूम नहीं कि 91 से छगन भुजबल कैसे उनके साथ खड़ा होकर लड़ रहा है, कांग्रेस से निकाला गया, तब में कांग्रेस का विरोधी पक्ष नेता था, कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मेंबर था। मैं पहला आदमी था कि मैं पवार साहब के जाऊँ। मैंने कहा जैसे कि मेरे जो गवर्नमेंट का निवास स्थान वहीं जो है इस पार्टी का जन्म हुआ। तो बात यह है कि तब से और इतना लड़ा उनके सबके सामने में। जब विरोधी पार्टी है तो हमारा काम जो है लड़ना, पूरी ताकत से हम लड़े। हमने कई सारे लोगों को क्या कहे कि हमारे घर के ऊपर हमला हुआ, बाल बाल बचे, एक बार नहीं कई बार। हमारे भाषण से कई बार लोग हर्ट भी हुए।
उसकी भुगतान भी हमको देनी पड़ी। बिल्कुल हमने पार्टी के लिए करना था, क्योंकि जब तक वो करेंगे नहीं हमारी पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। हम गोल 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 बात नहीं करते रहे कभी। लेकिन 24 साल बाद पार्टी को भविष्य को लेकर फिर से सवाल उठने लगा है। वो भी अब अलग अलग जगहों पर जाएंगे और प्रचार करेंगे, अलग अलग चीजें कह रहे हैं। आप लोगों ने भी कल उन्हें दैवत, विट्ठल, वो सारी चीजें कही हैं। बिल्कुल, तो फिर अब आगे कैसे होगा? नहीं बोलेंगे क्या वो बोलते हैं कि नहीं बोलना, मेरा तस्वीर नहीं लेना है, नहीं लेंगे। क्या हमने हमारा काम किया, क्या हमने हम चाहते थे, मगर वो नहीं, वो फिर जो है जो हमको कि मत कहो, ये करो। अब वो सारे जो लीडर जो बैठे हैं वो सोचेंगे भाई आगे क्या करना। और अजित पवार ने तो कल डिक्लेयर कर दिया, जहाँ वो जाएंगे वहाँ अजित पवार जाएगा। सर, इसके अलावा एक जो आरोप या सवाल उठ रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने, जिस राज्यपाल ने फुले जी का अपमान किया था, उनके ही पार्टी वालों के साथ आप लोग बैठने वाले हैं। ये किस तरह की आइडियोलॉजी को आगे लेके जाने की बात की जा रही है, इसे लेकर बार बार कहीं ना कहीं निशाने पर आप हैं और आपको लेकर ही ये सवाल पूछा ठीक है ना। तो फिर शरद पवार साहब क्यों जाते थे उनके साथ बात करने के लिए बार बार? दिल्ली में क्यों उनके साथ जो बैठते थे और बार बार उनसे प्रॉमिस करते थे बीजेपी कि हम तुम्हारे साथ आते हैं। कई बार बोलते शिवसेना का छोड़ो, इसको छोड़ो, ये करो, वो करो, वो करो। क्या वो भी तो फुले शाहू अम्बेडकर का नाम लेते हैं? और मैं आज भी फुले शाहू अम्बेडकर का नाम लेकर एक काम करूँगा। मैंने समता परिषद है, महात्मा फुले समता परिषद, ओबीसी के लिए काम कर मैंने शुरू भी कर दिया है। क्या और मैं और जब किसी ने उसके ऊपर, ये मेरे तो भगवान है, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, शाहू महाराज और अम्बेडकर, बस उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं जरूर आवाज उठाऊंगा। मगर अगर ओबीसी के प्रश्न जो है, पिछड़ों के जो सारे सवाल अगर मुझे हल करना है तो सब लोग जा रहे हैं सत्ता में, मैं अकेला बैठकर उधर क्या करता भाई? मैं भी उनके साथ गया कि भाई हमारा काम करो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसके पहले जब शिंदे और फडणवीस की सरकार आई, हमने कहा कि भाई मंत्रालय में जिजा माता का बहुत बड़ी तस्वीर जो है लगाई हुई है, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर की, जरा महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाओ। 1 महीने के भीतर उन्होंने लगाया। मैंने कहा कि पहली जो है लड़कियों की स्कूल जो भिड़ेवाड़ा जो है वो फिर से जो है एक मोनूमेंट बनना चाह रही। उन्होंने तुरंत जो है मीटिंग काम कर, बस मैंने कहा जब वो फडणवीस जो है उधर शिंदे साथ के साथ जो है उन्होंने सरकार बनाई, तब भाटिया कमीशन की सारी रिपोर्ट जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि इनको जो एम्पिरिकल डाटा नहीं है इसलिए नहीं मिलेगा, आरक्षण की जो बात जो ओबीसी की, तो जो मध्य प्रदेश ने बनाया वो हमने भी बनाया। मगर वो सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश भारत सरकार ने मदद की थी, उनको सपोर्ट किया था तुषार मेहता साहब। मैंने फडणवीस को कहा, साहब फडणवीस जी जो उनको मदद हुई है, आप कृपया जो है तुषार पवार के साथ और तुषार मेहता साहब के पास जाइए और उनको मदद, हमारी मदद करिए कि उन्होंने और हमारा आरक्षण। बिल्कुल, मैं आप बता रहे थे कि किस तरह से सरकार ने मदद की। आखिरी सवाल, आपने इस पूरे पार्टी को देखी है, क्या आपको लगता है कि ये दोनों वापस आगे मिल पाएंगे, या जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ कल से बातें आई हैं, पवार परिवार के 2 गुट हो गए हैं, क्या वो आगे मिल पाएंगे या इस पार्टी का भविष्य क्या होगा? मैं भविष्यवेत्ता तो नहीं हूँ, मगर जिस ढंग से एक दूसरे के ऊपर प्रहार हो रहा है वो देखते हुए मुझे बड़ा कठिन लगता है इसके सामने। फिर आगे क्या होता है मैं नहीं बोल सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने की समय की कमी है उसके बावजूद। जिस तरह से आपने सुना, महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर हैं छगन भुजबल, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसी चीजें थी, कई सारे कारण थी जिसके वजह से जो फैसला लिया गया। पार्टी के अध्यक्ष अब अजित पवार हैं और आगे का फैसला उनकी ओर से और पार्टी की ओर से लिया जाएगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल और बीजेपी संगठन में बदलाव की अटकलों के बीच कल प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक हुई। ये बैठक करीब 4 घंटे चली है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई है।
गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे थे। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के बड़े नेताओं की लगातार बैठकें हो रही हैं। हाल ही में जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष की भी बैठक हुई थी। 4 राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा चुके हैं। आज और कल पीएम मोदी 4 राज्यों के दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम छत्तीसगढ़ जाएंगे, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। रायपुर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और वहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गोरखपुर में पहुंचेंगे। गीता प्रेस गोरखपुर के शताब्दी समारोह में भी हिस्सा लेंगे पीएम मोदी और वहां वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। वाराणसी में विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन होना है और कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। वाराणसी के स्थानीय बीजेपी नेताओं के साथ उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बैठक करेंगे। कल तेलंगाना जाएंगे और राजस्थान का दौरा भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी या उन्हें राहत मिलेगी, इस पर आज गुजरात हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। सूरत कोर्ट ने आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। बाद में सजा पर रोक लगाने की याचिका को भी खारिज कर दिया था। इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी और उन्हें अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा। सूरत की कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर आज फैसला आना है। 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी जनसभा हुई थी और इस दौरान दिए गए एक बयान को लेकर ही ये पूरा मामला उठा। राजस्थान को लेकर कांग्रेस की कल एक बड़ी बैठक हुई है। इसमें प्रदेश में पार्टी की चुनावी तैयारियों की बात की गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या गहलोत और सचिन के बीच का विवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी एकजुट है और चुनाव सभी साथ मिलकर लड़ेंगे। हालांकि सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी, इस पर तस्वीर साफ नहीं है। राजस्थान पर कांग्रेस की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। सचिन पायलट बैठक में मौजूद रहे, लेकिन पैरों में चोट की वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हुए। करीब 4 घंटे चली इस बैठक के बाद कांग्रेस ने एकजुटता का ऐलान किया। आज का मीटिंग का स्पेशलिटी है, पूरा नेतागण एक ही साथ डिसाइड हो गया, यूनिटी के बारे में हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। बैठक के बाद सचिन पायलट भी संतुष्ट नजर आए। उन्होंने गहलोत सरकार के सामने 3 मांगे रखी थीं, जिनमें से 2 मांगों को पहले ही माना जा चुका है। गहलोत ऐलान कर चुके हैं कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और पेपर लीक के दोषियों को उम्र कैद तक की सजा के लिए कानून बनाया जाएगा। जहां तक वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात है, तो इसको लेकर भी कदम उठाया जाएगा। सबका ध्येय ये है कि कैसे दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 2018 में तीनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीती थी। इस बार पुनः वही होने वाला है। भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे और उसके पश्चात 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसका भी फर्क इस पर पड़ेगा। बीते कुछ अरसे से गहलोत और सचिन का टकराव लगभग अपशब्दों तक जा चुका है। इसके पहले भी खींचतान रही, जिसमें पायलट ने उप मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। चुनाव में 4 महीने बाकी हैं। ऐसे में पायलट की भूमिका क्या होगी, ये अभी साफ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक वे डिप्टी सीएम जैसा पद लेने को तैयार नहीं, लेकिन क्या उनको फिर प्रदेश अध्यक्ष या चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाया जाएगा, ये अगली कुछ बैठकों में तय होगा। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।